ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਤ ਭਗਤੀ, ਤਤਵ ਗਿਆਨ, ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, ये कहानी है नैनीताल देवभूमि उत्तराखंड के निवासी देवचंद राम जी की।
आर्मी में होने के कारण इनके पास दौलत, शोहरत और हर वो साधन था जो एक आम इंसान चाहता है। देवचंद जी ने भैरव की पूजा की और घर में मांस मदिरा का सेवन किया। समाज के सामने सब कुछ ठीक दिखता था, पर भीतर से उनकी जिंदगी खाली थी। उनके घर में भूत प्रेत की परेशानियां शुरू हो गईं और शराब ने उन्हें ऐसा जकड़ा कि वो खुद पर काबू खो बैठे। प्रमोशन रुक गई और उन्हें घर लौटना पड़ा, पर वहां भी हालात बद से बदतर हो गए। घर में हर दिन लड़ाई झगड़ा, नफरत और तनाव का माहौल रहने लगा। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में पूर्ण संत का आगमन हुआ। देवचंद जी ने पूर्ण संत से दीक्षा ली और फिर वो चमत्कार हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनका नशे की लत से छुटकारा हो गया। घर का माहौल बदलने लगा। आखिर यह सब कैसे संभव हुआ? आइए सुनते हैं देवचंद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा देवचंद राम आगरी सर। देवचंद जी आप कहाँ से हैं? ग्राम पटरानी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से हूँ सर। देवचंद जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 को ली सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी हाँ भगत जी, हिंदू समाज में रहने के कारण सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। खास तौर पर शंकर भगवान की पूजा करता था और दुर्गा माता को भी इष्ट मानता था और भैरव भूत की पूजा करता था, जिस कारण उनसे कोई लाभ नहीं हुआ सर जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का मेन कारण सर जी मेरा, जब मैं भूत पिचास की बाधाएं से परेशान हुआ तो मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मुझे अनेकों लाभ हुए। सबसे पहले लाभ, मैं स्वयं गाड़ी चला रहा था, 4 व्हीलर गाड़ी चला रहा था। उसमें मेरे 8-9 सवारी बैठी थे। रात का समय था, बैंड था उस जगह पे, दोनों साइड खाई थी, रोड के दाहिने और बाएं दोनों साइड खाई थी। आगे से कोई गाय आ गया, अचानक किसी खेत से कोई भगा रहा था तो उस पर गाड़ी टकराई। गाड़ी का जो आगे का शीशा होता है वो फूट गया था और गाड़ी वहाँ पे काफ़ी बबलिंग किया गाड़ी ने, पर लेकिन गाड़ी कहीं ना इधर गिरी ना उधर गिरी। वहीं पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने वहीं पे रोक दी गाड़ी को और कोई घटना नहीं घटी। दूसरा लाभ, मैं अपने पोते को हॉस्पिटल ले जा रहा था। उस बच्चे को हर्निया का प्रॉब्लम था और दूसरे में उसकी नाभि काफ़ी लंबी थी। रास्ते में एक गाय आ गई, बाइक से जा रहा था, जिस कारण से गाय से टकरा कर रास्ते में गिर गई और मेरी बहू उस बच्चे को पकड़ के बैठी थी पीछे। बहू मेरे से आगे गिरी, बाइक से आगे, और वो छोटा बच्चा उससे और आगे गिरा, पर लेकिन उन पर कोई खरूज नहीं आया। थोड़ी सी मेरे नाखून छिल गया था, इतना ही हुआ, बाकी कुछ वो नहीं हुआ। गाड़ी पे थोड़ा सा उसका हेडलाइट आगे का वो टूट गया था, बाकी कुछ नहीं हुआ गाड़ी पे। और फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि इस बच्चे का ऑपरेशन होगा, 8-9 साल का होगा। उस समय वो बच्चा केवल 1.5 साल का था। 8-9 साल का होगा, उसके बाद इसका ऑपरेशन होगा, इससे पहले नहीं, ठीक नहीं हो पाएगा। तो परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी गुरु महाराज की दया से उस बच्चे का वो हर्निया भी गायब हो गया और वो जो नाभि लंबी हुई थी वो नाभि भी सही हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, वो ऑपरेशन नहीं हुआ। मालिक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सब ठीक कर दिया। और एक लाभ और हुआ, मेरी बीवी को एलर्जी हो गई थी, काफ़ी बड़े बड़े धब्बे हो गए थे शरीर पे, जिस कारण से वो ठीक नहीं हो पा रही थी। डॉक्टरों के पास ले गया, कोई दवाई काम नहीं किया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी से महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी बीवी ठीक हो गई और गुरुजी ने बताया कि इसकी आयु इतनी थी और परमात्मा ने भक्ति करने के लिए इसकी आयु और बढ़ा दी, जिस कारण से वो आज सुरक्षित है, सही है। परमात्मा ने बहुत रजा की। और मैं फौज में होने के कारण, फौज में दारू मदिरा काफ़ी मिलता है, मांस भी मिलता है फौज में होने के कारण, वहाँ से मैंने दारू पीना सीख गया। कम से कम 20 साल की उम्र से मैं दारू पीना स्टार्ट कर दिया था। मांस मैं शुरू से ही खाता था, बचपन से ही, क्योंकि हमारे घर में भैरव भूत की पूजा होती थी, तब से मैं मांस खाता था। तो फौज में तो और भी मिल गया, वहाँ पर आराम से मांस खाता था, दारू पीता था और अपनी ड्यूटी भी करता था। सब ठीक चल रहा था। जब मुझे प्रमोशन हुआ, जब मैं नायब सूबेदार बना, तब फिर मेरे घर में देखने वालों ने, जो मेरा घर किस प्रकार चल रहा है, सब ठीक चल रहा था, दूसरे का सुख देख करके
अगला आदमी दुखी हो जाता है। उन्होंने मेरे घर में जादू चेड़ा शुरू कर दिया। तो उन्होंने मेरे पीछे वही जादू वहाँ तक छोड़ दिया, जिस कारण से मैं फ़ौज में भी दारू ज़्यादा से ज़्यादा पीने लग गया। और उस दारू पी करके हर किसी के साथ लड़ना या कोई वो करना शुरू हो गया वहाँ पर भी। तो मैं बाद में हाइपोटेंशन का कैटेगरी बन गया, जिस कारण से मुझे आगे का प्रमोशन नहीं मिला। वहाँ से मैं घर की पेंशन लिखा, घर आ गया। घर में आने के बाद दारू और ज़्यादा हो गया मेरा, क्योंकि वहाँ से जहाँ डर था वो डर छूट गया और यहाँ पर आज़ाद हो गया। दारू और ज़्यादा हो गया और घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लग गया। और क्योंकि मेरे साथ जादू चेड़ा किया गया था या भूत पिशाच की बाधा थी, उन्होंने मुझे इस प्रकार से अपने पर लपेट लिया, अपने ही अंडर में रख दिया, आगे किसी का बस नहीं चलने दी। तो मैं इस प्रकार से वो करने लग गया। किसी बच्चों को कुछ बताता, कोई कहानी बताता या कहीं ऐसा काम करना है, वो मेरे बातों को नहीं मानते थे, या वो मेरे को बोलते थे, या मेरी वाइफ मुझे बोलती थी कि तू ऐसा काम मत कर, तो मैं नहीं मानता था, उल्टा उससे ही लड़ता था। तो आज परमात्मा से जुड़ने के बाद इतना सुख दे दिया मालिक ने, इतना सुख दे दिया जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने, कि वो दारू भी छूट गया और बीड़ियाँ पीता था। सर्दी में बहुत बीड़ियाँ भी पीता था साथ में। तो वो आज मेरे मालिक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने सब दूर कर दिया। घर में सब सुख शांति रखा है, सबको अच्छी प्रकार रखा है। सभी पूरी परिवार यानी कि मेरी फैमिली, स्वयं मेरी जो फैमिली है, बच्चे मेरे, वाइफ मेरे, लड़के, मेरी बहू, मेरे नाती पोते जो भी हैं, सभी इस मार्ग में हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं वो उनकी खुद की बनाई हुई भक्ति विधि है या उसका कहीं प्रमाण भी है? हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वेदों के आधार पर, चारों वेदों के आधार पर, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषदों के आधार पर ज्ञान बताते हैं, सही ज्ञान बताते हैं और उसी आधार पर भक्ति बताते हैं हमारे लिए। संत रामपाल जी गुरु महाराज अपने बनाई हुई भक्ति को नहीं बताते हैं, स्वयं वो वेदों से और गीता से ही प्रमाणित ज्ञान देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कई चैनलों पर गुरु जी का सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे पे येलो पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए गए रहते हैं। तो उस नंबर से संपर्क करके आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। पुण्यात्माओं, एक पिता, एक माता अपने बच्चों के लिए कितनी दुखी होती है। एक भी कष्ट में कोई बालक हो जावे, चिंता में नींद नहीं आती। और हम जिस पिता के संतान हैं, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड, चींटी से लेकर हाथी तक, हम सभी उस कबीर भगवान के, उस अमर पुरुष के बच्चे हैं। अब हम यहाँ कितने दुखी हैं। आप तो बालक हो, पता नहीं बालक का चाहे कितना चोट लगी रहो, वो उसको कष्ट नहीं मानता, रोता अवश्य है और फिर भी गलती करने में पीछा नहीं देखता, क्योंकि उसको ज्ञान इतना ही है। तो वो परमात्मा कितना दयालु है। अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूर पर रास्ते में, जिधर वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था, वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान। और भगत आत्मा के एक विशेष, एक साधु रूप बनाकर बैठ गए। ऋषि रूप में थे ही, रहते ही थे। और पुण्यात्मा जो होती हैं, भगवान को चाहने वाली, उनके लिए भगवान ने कहा कि साधु दर्शन राम का और मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत के, परमात्मा आवे याद, और वो है लेखे में वाहे घड़ी, बाकी का समय बाद व्यर्थ।
अब संत ऋषि के दर्शन हुए। चंद्र विजय भाट ने प्रणाम किया, हे महाराज बड़ा सौभाग्य आज मेरा, सुबह सुबह महात्मा के दर्शन हुए। हे भगवान, तो प्रणाम करके पहले तो चला गया, घूम फिर के आया। आते समय कहने लगा, भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, दर्शन दो दाता। अब वो तो गए इसीलिए थे, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा बोले भाई चलो आगे घर पे। वहां कुछ देर डिस्कस हुआ, उनके आपस में चर्चा हुई। परमात्मा से ज्ञान सुना उसने के कहा जी भगवान को चर्चा सुनाओ। तो परमात्मा ने सारी कथा कहानी का सृष्टि रचना सुनाई, काफी ज्ञान दिया। तो वो बड़े प्रभावित हुआ, कहने लगा भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, वहां चलिए, और वहां पर आपके और भी बच्चे हैं, वह भी आपके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे, घर चले गए, आसन दिया, अलग से बैठाया मालिक को, सोच कपड़े बिछा के, और फिर सत्संग सुनाया। अब उस समय तो केवल एक व्यक्ति ने नाम लिया, चंद्र विजय ने। बाकी इस परिवार कहने लगा नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता इनकी ये बातें, ये तो शंकर भगवान से भी ऊपर बताते हैं। क्योंकि श्रीलंका का राजा रावण जो है, भगवान शंकर से अतिरिक्त किसी की पूजा ना करता था, तो उसको देखा देखी पूरा श्रीलंका भी शिव का ही पुजारी हो गया था। तो इस बात को पहले स्वीकार नहीं हुआ, फिर वो चले गए भगवान वहां से। पीछे से उस चंद्र विजय भाट ने अपने पूरे परिवार को बैठा बैठा के बहुत अच्छी तरह समझाया, तो उन सब का मन बन गया। तो परमात्मा फिर वहां पहुंच गए। अब उन सभी पूरे परिवार ने नाम ले लिया, और जो मालिक ज्ञान सुनाया करता था, ये तो ज्ञान ऐसा है प्रत्येक व्यक्ति चाहता मैं सबको सुना दूं, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को, ऐसा अनमोल ज्ञान देखा ना सुना। अपनात्मा वो चंद्र विजय भाट जो था, वो रावण के पास जाता था, उसको चुटकले चटकले सुना के, उनकी महिमा मुहिमा गा के, और ये भाट लोग उनका एक मनोरंजन कराया करते थे। और उधर से उसकी पत्नी जो थी, वो कर्मवती नाम था उसका, वो जाती थी रावण की पत्नी मंदोदरी के पास, वो उसको चुटकले सुनाती थी, अच्छे बुंडे। इस मन की आदत है, ये राम की कथा कम और काम की कथा ज्यादा सुनना चाहता है, सेक्स की। तो पहले तो वो बकवास सुनाया करती थी, पता नहीं के मंदोदरी भी हंसा करती, दांदरे काटा करती हैं, चुटकुले सुन सुन के। तो फिर जब उस कर्मवती को, चंद्र विजय भाट की पत्नी को, उस बेटी बहन को मालिक का ज्ञान हुआ, सब बकवाद छूट गई। कहते हैं भवन चतुर्दश ढूंढिए परम स्नेही साथ, जिन मिलते हैं सुख उपजय, मिटते कोट उपहाद। ये बकवाद मिट जाती है सारी जीव की। तो वहां अब वो कर्मवती पहले तो बकवाद सुनाया करती, फिर मंदोदरी ने जब टाइम होता उसको बैठा लेती कि महारानी हमारे घर पे महाराज आते हैं हमारे गुरुजी, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान सुना है, आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं कथा। अब सुनाओ। मंदोदरी भगवान को चाहने वाली थी, तो वो मंदोदरी को जो कथाएं सुनाई परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की, मंदोदरी कहने लगी कि कर्मवती तू तो बड़ी मुंह फाड़ थी, तेरी इस पात्र में नरा गोबर भरा था, गंध उगला करती थी, ये अमृत किसने डाल दिया? तू ये ऐसी ऐसी बातें कहाँ से सुने आई, तू मैंने कदे देखी ना सुनी। तो उसने बताया कि हमारे गुरुजी आते हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया मंदोदरी। तो मंदोदरी बहुत प्रभावित हुई कि इसे संत के ऋषि के दर्शन करने चाहिए। उसने कहा मंदोदरी इब कह तेरे गुरुजी आओ ना, तो मेरे पास बुला के लाइए। अब परमात्मा फिर गए तो उस चंद्र विजय की पत्नी ने कहा प्रभु हमारी रानी आपको याद करती है, मैंने आपके द्वारा सुना हुआ ज्ञान उनको सुनाया, बड़ी प्रभावित हुई, और उन्होंने कहा कि अपने गुरुजी को यहाँ बुला के लाना। परमात्मा ने कहा बेटा हम किसी राजा के घर नहीं जाते, उनको गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, साधु संत नहीं जाया करते किसी राजा या किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के घर, जब तक वो हमारे विचारों से परिचित नहीं होते।
अब वो कर्मवती फंस गई धर्म संकट में कि यदि मैं मेरे गुरुजी नहीं गए तो वह हमने सजा दिवा दे मनमाना मंदोदरी, परमात्मा अंतर्यामी जानेंगे। अब बेटी तो बहुत दुखी होगी। उसने कहा बेटा ऐसे कहना उसको कि देखो ऋषि महर्षियों को संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाया करते, अब बाई ऑर्डर बुलाने से वो आ भी गए रजा नहीं बख्शेंगे तो लाभ क्या होगा। तो साधु संतों के पास जाने से बहुत लाभ होता है, स्वयं जाना चाहिए। तो मंदोदरी को जाकर के उसने कहा रानी मैंने अर्ज करी थी गुरुदेव से, उन्होंने मना कर दिया आपके यहाँ आने से और कहा कि देखो साधु संतों को आदेश से नहीं बुलाना चाहिए, उनके चरणों में जाना चाहिए, लाभ उठाना है। और यदि बाई ऑर्डर बुला भी लिया तो लाभ नहीं देंगे। मंदोदरी कहने लगी बहन ठीक है मैं चलती हूँ, अब के तेरे गुरुजी आओ तो मुझे मिलाना। परमात्मा फिर गए, ये तो भटक रहे हैं कि एक आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, सुखी करने के लिए। यहाँ भी सुखी करेंगे आपको और यहाँ से चलोगे जब देखना सतलोक में ले जाएंगे, वहां तो कहना है क्या कितना सुख देंगे। अब क्या हुआ, मंदोदरी चली गई, परमात्मा के दर्शन किए, देखते ही आत्मा खिंच गई। पुण्यात्मा थी, पिछली संस्कारी थी, परमात्मा की बच्ची, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई मालिक के वचनों से और कहा परमेश्वर मुझे नाम दे दो। परमात्मा ने दीक्षा दी थी। अब मंदोदरी ने जो ज्ञान सुना था उसने चाहा कि अपने पति को समझा दूं, जो नरे बकरे खावे, नरे झोटे खावे, मांस खावे, दारू पीवे और भगत कवावे ब्राह्मण। इसने तो कर्म बिगाड़ दिए क्यों, ज्ञान से ज्ञान हुआ भगवान के तत्व ज्ञान से। तो मंदोदरी ने चेष्टा की समझाने की अपने पति रावण को कि आप जो साधना कर रहे हो ये तमोगुण भगवान शिव हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब वो इस बात से दुखी हो गया कि मंदोदरी तू ऐसी बातें मत कर, मैंने भगवान शंकर के यहां से शीश काट कर चढ़ा दिए, इन्होंने मेरा वापस शीश दे दिया और मेरे को कितना धन दे दिया, सिद्धि दे दी, इतनी मेरे को 1 लाख पुत्र व्रत दे दिए और मेरा पुत्र मेघनाद ऐसा है ऊपर चला गया, इंद्र को भी जीत लिया, हर मैं एक भिखारी के आगे हाथ जोड़ूंगा जाके। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि रावण गलत बोल रहे हो आपने इस संत की लीला महिमा से अपरिचित नहीं हो, इस कर कैसे बोल रहे हो। तो आखिर में रावण ने ये कह दिया कि मेरे को आगे से ये मत कहना, मैं तुझे मना नहीं करता, तू कितना दान कर, धर्म कर, किसी गुरु से उपदेश रख। अब कहते हैं लड़की अपने पति को हमेशा जीवित देखना चाहती है। उधर से क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जैसे विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर जन्मे थे, विवाह हुआ सीता जी के साथ। विवाह होने के कुछ समय उपरांत उनका वनवास हुआ, वो वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वहां से सीता जी का अपहरण कर ले गया रावण। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी यानी मुनिंद्र जी ने मंदोदरी को समझाया बेटी इसने तो अपनी सात मोल ले ली, इसने अपना जो है ना मौत ले आई हो अपनी, और कह दे इसको इसने भाई इज्जत वापस दे दे इसको, सिंपल वो मैं ना समझे, ये देवी है और देवी को सताना महापाप है, इसको वापस पहुंचा दे, तेरा इसकी इसी में खैर है। वैसे तो औरत वैसे ही देख कर राजी नहीं होती किसी दूसरी औरत को, फिर भी उसने जब ये पता चला कि मेरे पति की जान संकट में आवेगी, क्योंकि संत जो कहते वो सत मानती थी, ये महापुरुष हैं, झूठ नहीं बोलते, इन्हें क्या लेना देना है, ये कोई रामचंद्र से मिले नहीं या किसी और को जानते नहीं, सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। वह बहुत प्रभावित हुई, रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की तो नहीं माना। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बीच में एक प्रकरण रह गया। अब रावण तो सुने नहीं था, और यू ज्ञान ऐसा है आदमी हजम कर नहीं सकता अकेला, जो यू ज्ञान आपको सुनेगा, दास बता रहा भगवान का दिया हुआ कबीर साहब का,
तो उसकी ये नीयत रहती है बताऊं जरूर किसी से, चाहे कोई सुने चाहे ना सुना। तो रावण ने सुनना बंद कर दिया। उसका देवर था विभीषण, मंदोदरी उसको लगी समझाने। तो वो पहले तो दोनों भाई बैठे थे, रावण को समझावा थी। रावण नहीं माना तो विभीषण कहने लगा, मन मुझे बता तू ये बात, मन तो बहुत अच्छी लगे, ये आपकी पहली बार सुन रहा हूं लेकिन फिर भी हृदय में समाती है। तो मंदोदरी ने उनको खूब समझाया। फिर कहा कि फिर अब क्या बने, कि दीक्षा ले, अब नाम ले गुरु जी से, कि चल नाम दिलवा मेरे को। मंदोदरी अपने देवर को लेगी और नाम दिलवाया परमात्मा थे। अब उस ज्ञान से वो विभीषण भी परिपूर्ण हो गया। अब क्या होता है, रावण नहीं मान रहा था सीता को लौटाने का, लौटाने को नहीं राजी हो रहा था। मंदोदरी ने बहुत कुछ समझा लिया था। तो उधर विभीषण ने भी उसको बहुत कुछ समझाया, रावण तेरे घर में कितनी अच्छी औरत है, और फिर भी तू बकवाद की तरफ चल रहा। क्यों भाई भाई को कह सकता है जब उसकी कोई संकट आपत्ति उसके सामने दिखाई देती है। नहीं तो रावण को कौन बोला, वो तो अहंकारी आदमी था, 1 मिनट में तलवार गर्दन पर जाती थी उसकी, कोई उसके नो कर दे किसी बात न था। तो उसने क्या कहा, रावण नहीं माना। रावण कहने लगा तू कायर है और तेरे बस की बात नहीं, बैठ जाए एक तरफ। अब मंदोदरी ने देखा कि ये नहीं मानेगा, ये मरेगा और मैं विधवा हो जाऊंगी। अपने गुरुजी से प्रार्थना की, भगवान आप दया कर दो, कभी समझा दो, एक बार मान जाते वो तो आपकी बात को। परमात्मा ने कहा बेटा ये नहीं मानने वाला, इसके अंदर वो गुण नहीं है। तब मंदोदरी ने कहा भगवान एक बार आप उनको समझाने की चेष्टा करो दाता, और यदि वो नहीं मानेगा तो मैं अपने आप को आज से विधवा मान लूंगी, मन दुख नहीं आओगा परमात्मा इसके मरने का। तो परमात्मा ने सोची या बूढ़ी बेटी, अब ये जुगाड़ जोड़ रखे कालना हमारे, कितना नालायक, 1 नंबर का दुष्ट व्यक्ति वो रावण। पता नहीं कि कहते 100 झोटियां का मांस तो एक दिन पक्या करता उसके लिए, और 100 मटके दारू के पिया करता एक कब है। अपने आत्मा ये बात हमारे दच्चे नहीं, क्योंकि 100 झोटियां का मांस एक आदमी के ऊपर खावे, क्योंकि हम उनके शरीरों से परिचित नहीं, उनकी हाइट से परिचित नहीं, उनके आहार से परिचित नहीं। ये तो हमने देखे, हम दास 61वां वर्ष चल रहा दास का। जब हम छोटे छोटे थे से टुकड़े टुकड़े आदमी देखे, अरनों का करते ही 32 लड्डू खा जाता है, एक 32 आदमी खाओ 32 लड्डुआन आज के दिन, और उनके बद हजमी हो जाए, और एक एक धड़ी खीर खा जाया करते ये ब्राह्मण, हमने देखे। यानी 5-5 किलो हरी वे कटोरी ना उठे। तो इस बात से भूल जाओ। तो कहने का भाव यह कि हम उस अतिथि बातें कि इतने कुकर्म करा डेली, उसका बुद्धि में कहाँ आ ये बातें। तो परमात्मा ने सोचा या बेटी इसका बंदगी या इसकी कमजोरी इसको मारेगी। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटी मैं जाता हूं, एक दिन कोशिश करूंगा तेरी श्रद्धा ना टूट जाए भगवान। तो इसलिए अब रावण की सभा लगी हुई थी और बाहर पहरेदारों को उस जिस समय उसकी मीटिंग होती थी सतर्क यानी स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता था कि बाहर से चिड़िया भी नहीं आ जाए अंदर। उस समय परमात्मा वहां जाकर प्रकट हो गए, पहरेदारों के साथ पास खड़े हुए कहा भी राजा को संदेशा दो कि एक ऋषि मुनिंदर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ आपको शिक्षा देना चाहते हैं। अब वो कहने लगे पहरेदार महाराज जी हमें बख्शो, इधर आज कोई जा नहीं सकता, अंदर का आदेश बाहर जा सकता है, बाहर का आदेश भी हम अंदर देने नहीं जा सकते, हमारा राजा बहुत खतरनाक है, गर्दन काट देगा। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, जहां रावण बैठा था ऊंची स्टेज पे और नीचे उनके बैठे थे सपसलार कुर्सियों पे, उसके थोड़ी सी दूरी पर अंदर जाता हुआ देखा। ऋषि देखकर वो एकदम
चकित हुआ कि ये व्यक्ति अंदर कैसे आ गया। हमारी गुप्त मीटिंग चल रही थी, तो उसने आव देखा ना ताव देखा, वो तलवार निकाली कि तू अंदर कैसे आ गया। अब उसने जो ना एक क्रोध में 70 वार किए थे तलवार के परमात्मा को काटने के लिए। और कबीर परमेश्वर अर्थात मुनिंदर जी के हाथ में एक सीख थी झाड़ू की। ये झाड़ू होता, उसकी सीख एक ले रखी थी दाता ने, और जब वो तलवार मारे तो वह सीख अड़ा थे। वो सीख के ऐसे लगे थी वह तलवार उसकी, जैसे लोहे के खंभे के लग गया, कट्टा कट हुआ। जब रावण के पसीने आ लिए, जब वो थक के खड़ा हो गया, कहने लगा तू अंदर कैसे आ गया। परमात्मा बोले तेरे भैया सीख तक कटी नहीं, तू मुझे मारेगा। तब उसने पूछा कि तू, रावण बोला उनको बुलाओ पहरेदारों को, उनको कत्ल करूंगा। परमात्मा बोले उनका दोष नहीं है, उन्होंने तो मुझे मना कर दिया था संदेश भी देने के लिए। फिर परमात्मा से पूछा रावण ने तू आया कैसे अंदर, कि ऐसे आ गया, अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए। रावण के सामने से एकदम अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रकट हो गए कि मैं उनको आता दिखाई नहीं दिया, मैं ऐसे आ गया। अब वो दुष्ट आत्मा फिर भी ना समझाइयो कौन है तेरे सामने। कहने लगा देख तू जा यहां से, तू आया किस लिए है, बता तेरी बात क्या है। तो परमात्मा ने कहा कि रावण तेरा जो है अंतिम समय आ लिया है, और मेरे आदेश का पालन करके जब तू इस लड़की को वापस दे देगा, सीता को, इस देवी को, तो तेरी जीवन को मैं बदल दूंगा, इन बुराइयां तेने छोड़नी पड़ेंगी। वो कहने लगा तेरे जैसे शिक्षक मेरे पास बहुत आ लिए, मैं शिक्षा बिना नहीं हूं, मैं खुद ब्राह्मण हूं, विद्वान पुरुष हूं, और तू एक भिखारी ऋषि, मुझे क्या शिक्षा देता, मैं तेरी बात ना मानू को। अब रावण की तो वो स्थिति हो चुकी थी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। एक बूढ़ा व्यक्ति शराब पिए खड़ा था और नो अल्लाह उसका डोगा गिर गया जमीन पे, वो डंडा ले रखा था, वो गिर गया। एक जेंटलमैन आया, वो कहने लगा बुजुर्ग ताऊ जी तो यह शराब क्यों पिया करो आप, देख सारा शरीर कांप रहा आपका, और डोगा भी ना उठता। नो बोला रे डोगा दे दे, तो कहने लगा शराब ना पिया करे। नो बोला रे शिक्षा बिना ना रह रहा तो न देना होता, दे डोगा ना, जा तू अपना काम कर। नो बोला तेरे प्रवचनों बिना काचा ना रह रहा, बहुत तेरे कैसे बहुत मिल लिया, मैंने ये बात कहनी है, दारू ना पिया करे, नहीं डोगा पकड़ाना हो तो उठा देना, चल तो अपना काम करे। तो रावण ने तो भाई इतनी पी रखी थी इस काल की भांग। परमात्मा से कहा कि तेरी बात मानू ना कति, तू जा चाहे मत जा, क्यों देख लिया मारे तो मरता ना, सारे कुकर्म करके देख लिए और फिर भी नू ना माना, ये कौन है। तो परमात्मा कहते हैं आपको इस काल ने अंधा कर दिया, इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। और उस मीटिंग में विभीषण भी उपस्थित था। परमात्मा आगे वहां से चले गए। शाम के समय विभीषण घर पे आया, अपनी भाभी से कहा कि आज तो गुरुजी को मार दिया होता भाई ने। तो मंदोदरी कहने लगी ये इस संकट में मैंने ही गुरुदेव को डाल दिया नालायक ने, और मेरी प्रार्थना पर ही वहां गए हैं। क्या हुआ कि ऐसे ऐसे एकदम कितने क्रोधित हो गए, स्टेज से कूद कर स्वयं तलवार मारने लगे। गुरुजी के हाथ में एक सीख थी, वह सीख भी ना कटी। जब थक के बैठ गया
परमात्मा ने कुछ कहना चाहा, मान्या नहीं, तो भगवान वहां से आ गए। अपने आत्माओं, जो हमारा पिता है उसकी तो मैं खबर भी नहीं, जो हमारे लिए दुख पा रहा है, भटक रहा है, कि प्राणी को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, अपनी शरण में लेकर यहां भी सुखी करने के लिए, और हम उनको पूज रहे हैं जो हमें ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, क्योंकि देवता है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे प्रारब्ध को परिवर्तित भी नहीं कर सकते और ये दुख दे नहीं सकते, क्योंकि ये देवता है, अच्छी आत्माएं हैं। तो हम इनको पूज रहे थे। तो पुण्यात्माओं, मंदोदरी कहने लगी गुरुदेव के पास, जो परमात्मा से मिलने गई, और कहा, भगवान माफ अक्षमा करना मुझ दासी को, मेरे कारण आपने बहुत ऊंच नीच सुनना पड़ा दाता। मेरा पति का मुंह था, वो मुझे सता रहा था। अब दाता वो बेशक मर जा, मेरी ओर से आज मर लिया, वो मरियो से जिंदा रहियो, दाता अपने चरणों से दूर ना करना अपनी बच्ची को। तो परमात्मा, ठीक है बेटा, कहा तू भक्ति कर, या कोई किसी का ना है, आजकल मृत्यु हो जा, कौन किसका ठेकेदार है पता नहीं, इसका जन्म की तो होगा, तेरा कहाँ होगा। ठीक है, जब तक आपका संयोग है एक नेक नीति से निभाओ, परमात्मा से डर कर रहो। जो जिसका भूमिका है पति की है, पति वाला रोल करे, पत्नी का है पत्नी वाला करे, बेटे का है बेटे वाली भूमिका ठीक निभानी चाहिए, तभी आप सुपात्र कहलाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। अब क्या हुआ, उधर से रावण को संदेश मिले, लेकिन रावण नहीं माना। श्री रामचंद्र जी के संदेश वाहक दूत वहां गए, श्री अंगद जी, श्री हनुमान जी आदि आदि, लेकिन वो नहीं माना। कहने का भाव ये है कि युद्ध की तैयारी होगी। अब युद्ध करने के लिए समुद्र से सेना पार करनी समस्या आ गई। अब समुद्र के ऊपर का जावें कैसे? तो कहते हैं, उनके इतिहास में लिखा है जीवनी में, कि 3 दिन तक श्री रामचंद्र जी ने घुटनों जल में खड़ा होकर समुद्र के अंदर और प्रार्थना की थी कि हे जल्दी, हे समुद्र राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत आपत्ति में हूं, मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे रावण ने उठा लिया है, सेना पार करनी है, उस राक्षस को मारना है और उस देवी को छुड़वाना है। लेकिन समुद्र नहीं माना। अंत में कहते श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्निबाण दे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लक्ष्मण ने अग्निबाण दे दिया उठा के। रामचंद्र जी ने जो ही वो बाण साधा समुद्र को फूकने के लिए, उसमें लपटें निकलने लगी। उसी समय एक ब्राह्मण रूप बनाकर समुद्र प्रकट हो गया और कहा, भगवान यदि आप मुझे जला भी दोगे, आप फिर भी नहीं जा सकते, खंडर हो जाएगा, इसमें जाओगे क्यों करे, ये तो कुआं हो जाएगा जेरा, और ना जाने कितने जीव मरेंगे, आप पाप के भागी हो जाओगे। ऐसा काम करो भगवान, मेरी मर्यादा भी बनी रहे और आपका काम भी हो जा, सर्प भी मर जा, लाठी भी ना टूटे। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, वो बता क्या उपाय है फिर, कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक आपके भक्त हैं, क्योंकि उस समय आसपास के सारे ही भगत सारे इकट्ठे हो गए थे रामचंद्र जी के गेला। भाई इस पर आपत्ति आ गई और एक निकम्मा आदमी उसकी पत्नी ठा ले गया। उधर से शिवलोक से भी काफी गण आए थे, भगवान शिव ने भेजे थे, तो वहां बहुत इकट्ठे हो गए थे। तो नल और नील को बुलाया गया। नल और नील से कहा गया, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भाई एक पर आपकी परीक्षा दो तुम। उन्होंने क्या बताया, उस समुद्र ने ये बताया कि इनके गुरुजी के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है इनका, और उनके आशीर्वाद से मेरे ऊपर ये पत्थर कोई भी वस्तु रखते हैं वो डूबती नहीं, वहां से टस से मसनी होगी, वहीं रहेगी, तो मेरे ऊपर वजन नहीं बनेगा इसका।
अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा भी एक बार ट्राई दिखाओ तुम। अब उस दिन देखो हम न्यूम ऐसे मार खाते हैं, पहले तो नल और नील 100 शुक्र मनाया करते अपने मनिंद्र भगवान के, और उस दिन वो आंडी पाक गए, अभिमान हो गया उनको कि यदि आज हम गुरु जी को याद करेंगे, जंतर मंत्र प्रणाम करते हैं जैसे याद करने के लिए, तो ये न सोचेंगे उपस्थित जन ये कहीं और से शक्ति प्राप्त करते हैं, इनके अंदर कोई पावर नहीं। अब उन्होंने दोनों ने फटाफट उठाया एक एक पत्थर और रख दिया समुद्र पर, डूब गया। उनको भी अचंभा हुआ, उन्हें फिर दूसरा उठाया वो भी डूब गया, तीसरा रखा वो भी डूब गया। अब ये सोचने लगे, वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी कहने लगे समुद्र से, वो जो ब्राह्मण रूप में उपस्थित था, मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तू झूठ बोल रहा था। तो उस ब्राह्मण रूप में उपस्थित समुद्र ने कहा कि भगवान आज इनने कोई गलती कर दी, क्यों भाई तुमने अपने गुरु जी को याद नहीं किया, आज दिखा है ये अभिमान में आ गए, इसलिए इनके हाथ से वो पावर चली गई, दिखा है। वो तो अपना एस्टीमेट बतावा था और वह सचमुच ऐसा ही हो गया था। अब उन दोनों ने फिर अक्षमा याचना की, गुरु जी को याद किया, हे दाता दया करो, हमसे गलती होगी, माफ करो, हम तो पापी आत्मा है। वो डर गए न्यू कदे फिर वो आपत्ति फिर ना आ जाए तुम्हारे पे, और तुमने कर दी गलती आज ज्यादा, अब मान बढ़ाई की भूख में। तो पुण्यात्माओं परमात्मा हमें आगाह करते हैं कि यदि तुम ऐसे मर्यादा तोड़ दोगे भक्ति आपकी नष्ट हो जाएगी। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो छन होए, ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, माता को बहुत वर्षों के बाद कोई गर्भ रहा हो, फिर वो कितनी चिंतित होती है उस बालक को परिपूर्ण करने के लिए, कहीं ऊंचे नीचे में पैर न रखा जा, चलते समय भी बहुत सावधानी बरतती है, और रात के समय करवट बदलते समय भी वो बहुत चिंतित रहती है, कहीं मेरे बालक पर जोर ना आ गया, एकदम उधड़ के पड़ती है और देखती है दर्द पीड़ा तो नहीं होगी मुझे। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बना और ठेस लगे तो क्षीण होए, तेरी ऐसे भक्ति नसावे, तो उनकी भक्ति नस की खत्म होगी। अब उन्होंने रोए पीटे याद किया भगवान को, वो तो मालिक ने करना ही था, क्योंकि श्री रामचंद्र विष्णु अवतार और श्री कृष्ण भी विष्णु अवतार, और विष्णु कौन, ये भी भगवान का बच्चा। आप जैसी आत्मा पुण्यकर्मी प्राणी पोस्ट ये मिल गई इसको। जैसे आप किसी का भाई मंत्री बन जाता है तो भाई ही उसका, बेशक वो कितनी पोस्ट पे बैठा है, तो ऐसे ही आपके ही भाई हैं, उस परमात्मा के ही बच्चे हैं। तो उनके दुख का निवारण भी वही परमात्मा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे आपने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16-17 में जो सुना कि ऊपर को जड़, वो तो संसार रूपी वृक्ष की ऊपर को जड़ है, वो तो मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाएं हैं, और वो परमात्मा जो मूल है, जो जड़ है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत, यह लोक चरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो मूल मालिक जो है, जड़ रूपी जो सारे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, वहां से सबको आहार मिलता है। तो वो सबका धारण पोषण, यानी जिसकी जिस स्थिति की कोई संकट है, और वो परमात्मा ही उसका निवारण करता है। अपने आत्माओं, ये बहुत लंबा इतिहास है, कई दिनों में आपका समझ में आओगा। सबसे पहले जो परमात्मा आए थे और इस काल से वहां ऊपर मिले थे, इनका उसने विवाद बहुत किया था, फिर समर्थ के सामने वो नतमस्तक हो गया था। इसने कुछ वरदान मांगा था,
एक तो ये मांगा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपने शरण में लेना, जबरदस्ती ना करना, बलात् मत लेना मेरे से जीवों को। दूसरा ये कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब संसार गमन तुम कीजिए। और तीसरा वचन ये मांगा था उसने कि ऐसे मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में त्रेता युग में जाएगा, उसके साथ उसके प्रारब्ध में ऐसे संकट हैं और इस काल को पता है, उसको मैं टाल नहीं सकता। आप वो समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, वो पुल बनाना, वो पुल बनवाना। परमात्मा ने कहा ठीक है, और बता भिखारी। फिर कहा कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण रूप में मेरा पुत्र जाएगा और वो एक जगन्नाथ नाम से, क्योंकि बालक तो अपने हिसाब से करते, जगन्नाथ नाम से एक पुरी के अंदर एक मंदिर बनवाना चाहेगा और समुद्र उसने बन नहीं देगा, आप वहां उसकी रक्षा करना। परमात्मा ने कहा था ठीक है, और बोल। तो इस परमात्मा, कबीर परमात्मा से इस काल ने ये वरदान मांगा था, प्रार्थना की थी कि आप मेरे उस बच्चे की, ये काल के पुत्र हैं विष्णु, इस संकट से रक्षा करना। तब परमात्मा उस वचन अनुसार वहां पहुंचे और जाकर वैसे तो उन्होंने व्यवस्था कर ही दी थी, नल नील भेज दिए थे कि आप पर काम चल जाएगा इनका, जो ये नियमित रहेंगे तो ये पत्थर रख देंगे, ये पार हो जाएंगे, लेकिन वो भी फेल हो गए। अब क्या हुआ, परमात्मा वहां पहुंचे, नल और नील ने कहा कि वो आगे गुरुदेव, वो आगे गुरुजी। अब सबकी दृष्टि गई, एक ऋषि आते दिखाई दिए। निकट आए जब श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरण लिए, हनुमान सब ने चरण लिए, तब परमात्मा से प्रार्थना की कि हे भगवान, हम, श्री राम ने कहा कि हम बहुत संकट में हैं, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं, ऐसे ऐसे रावण ने मेरी पत्नी उठा ली है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार सर जी। सत श्री अकाल भगत जी। सर जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਭੱਠੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? संत रामपाल महाराज ਦੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਜੈਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਚਿਰਾਗ ਬੱਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਭਗਤ ਜੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਜੈਸੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੈਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਡਰਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਦੁਰੂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰ ਉਦਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਦੇਵਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਅਸੁਰ ਨੁਕੰਦਰ ਮੈਣੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਰਤੀ ਸੁਣਨ ਸਮੇਂ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਿਸਤਰੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੌਣ ਆ? ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਸਤਰੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਵੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲਈ? ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਭਗਤ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 600 ਵਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਜੋ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਜੋ ਬਾਰੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਭਗਤ, ਉਹ ਜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਮਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਟ ਅੰਡਾ ਮੱਛੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਐਸਾ ਦੂਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਅੰਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾਰੂ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ, ਗੁਟਕਾ ਪਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦਾਸ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿ ਉਲਟਾ ਦਰਖਤ, ਜੈਸੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ। ਜੈਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਕੀ ਡਾਰ, तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। ਇਹਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਲਟਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਭਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਉਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਤ ਰੂਪ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਖਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਰਕੀ ਡਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ। ਸਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਲਾਭ ਭਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਮਤੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਮਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 2 ਭਗਤ ਮਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਭਗਤ ਮਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਭਗਤ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਘਰੇ ਜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਗਤ ਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਯਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਜ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਰੈਫਰ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਕਸੂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਮਕਸੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੀਗਾ। ਸੈਨਿਕ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ
ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਹਸਪੀਟਲ ਰੈਫਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਮਤੀ ਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਖੰਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਮਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ICU ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਦਿਨ ਦਾ 40,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 40 ਦੱਸਿਆ ਭਗਤ ਜੀ, 3 ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਖਟਕ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਯਕਦਮ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਮਤੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਰੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਭਗਤ ਮਤੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਮਤੀ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਲਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ICU ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਗਤ ਜੀ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਭਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਲਾਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਮਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ ਨੋਰਮਲ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਆਇਆ ਭਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਮਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਲਾਭ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗੁੜੀਆ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਮਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭਗਤ ਮਤੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਗਤ ਮਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦੁੱਧ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕਲੀ 1 ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਿੰਦੇ ਨਰਸ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਮਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜੋਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋਤ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਜੀ। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੋ, ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਿਆ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਤਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ TV ਉੱਪਰ, ਸਤਸੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें